morning kids, welcome to SRB Academy. Today I Aparna Verma going to discuss with you subject science of class 6th. This is about chapter 4th and chapter 4th is based on sorting materials into groups. So in this chapter today I am going to discuss with you some properties of materials, and these properties are appearance, luster, hardness, soluble, insoluble, object may float or sink, transparency, opaque and translucent. These all the properties of materials today I am going to discuss with you in this chapter. In this chapter, sorting materials into groups, I have already discussed with you object around us. Means there are so many objects present in around us, and they all are different in their looking, in their properties, in their shapes, Anna. So these things I have discussed with you, and except that I have also discussed with you that objects and the materials they are made, and different types of objects that are made from the same material. These two things also I have discussed, and states of the material means there are 3 states of material like solid, liquids and gases. These everything I have discussed with you in our earlier video. So today I am going to discuss with you here our next topic, and that is properties of material actually. Okay, so have you ever wondered why a tumbler is made with a piece of cloth? आपने कभी सोचा है कि have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? आपने कभी सोचा है कि एक ग्लास जो होता है वो कभी भी कपड़े का क्लॉथ का बना हुआ क्यों नहीं होता है? Have you ever think this? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3rd, and also keep in mind that we generally use a tumbler of keep a liquid. आपको क्या करना है कि आप एक कपड़े का यूज़ करो, कपड़े को ऐसे टम्बलर जैसा शेप बनाओ. टम्बलर मीन्स ग्लास जैसा बनाइए, थैली जैसा, और उसमें आप पानी डालिए, फिर देखिए क्या होता है. Therefore would it not be silly, ये एक मतलब इतना पागलपन जैसे काम नहीं है. If we were to make a tumbler out of cloth, what we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such materials that will hold water. अगर हम एक कपड़े का ग्लास बनाकर ही यूज़ करते हैं तो आपने कभी सोचा है कि फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम प्लास्टिक का, मेटल का या कांच का ग्लास क्यों यूज़ करते हैं पानी भरने के. सिमिलरली इफ़ would not be wise to use paper like material for cooking vessel. इसी तरीके से हम कोई भी पेपर के बने हुए वेसल्स का यूज़ क्यों नहीं करते हैं कुकिंग के लिए. मीन्स यहाँ पर टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल. मीन्स materials have their different properties, their appearance, their shapes and their qualities, and metal, what metal we are using on that particular thing, है ना. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि टम्बलर को, ग्लास क्या हम कपड़े का यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर जो वेसल्स जो हम किचन में खाना बनाने के लिए बर्तन का यूज़ करते हैं क्या वो पेपर की यूज़ नहीं कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इफ़ वी आर यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर या क्लॉथ से बना हुआ ग्लास यूज़ करते हैं तो क्या होगा? यू आर लुकिंग इन दिस पिक्चर, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? पानी डाला तो सारा पानी क्या हो गया? नीचे निकल गया. ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ मेड अप बाय ऑफ क्लॉथ. क्लॉथ तो क्या करता है, अपने में से आर पार उसमें से निकलने देता है. हम क्लॉथ में कोई पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली उसमें से बाहर निकल जाएगा, है ना. सो वी सी दैन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी. तो हम देखते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज़ करते हैं. ये उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है. एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ यूज, और उस पर्पज़ को हम किस तरीके से, और उस हम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से एक्चुअली यूज़ करते हैं उसके पर्पज़ पर डिपेंड करता है. ठीक है ना. सो व्हाट ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस. तो हम यहाँ देखेंगे कि मटेरियल की ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको हम यूज़ करते हैं. सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस हियर, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो लुक ऑन योर नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड दैट इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अपीयरेंस. अपीयरेंस मीन्स किसी चीज़ का दिखाई देना. ठीक है ना, वो कैसी दिखती है, उसकी लुकिंग. मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जनरली अगर हम देखेंगे तो हर एक मटेरियल एक दूसरे से अलग दिखता है. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. येस, लोहा लकड़ी से अलग दिखता है.
आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम, और जो आयरन होता है वो कॉपर और एल्युमिनियम से डिफरेंट दिखता है. एट द सेम टाइम there may be some similarities between iron, copper, aluminum that are not there with wood. पर फिर भी अगर हम देखते हैं तो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में तो कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं बिकॉज दीज आर मेटल्स, पर वुड इज़ नॉट अ मेटल. दे हैव अ लस्टर क्वालिटी इनमें होती है. लस्टर मीन्स एक चमक होती है, पर वुड में वो चमक नहीं होती. तो अगर हम देखें तो आयरन, कॉपर और दीज थ्री मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट sometimes they have some similar qualities but they are totally different from the wood से ये बिल्कुल different होती हैं. So here they have given some activity number 3, collect some small pieces of different materials, paper, cardboard, wood, copper, wire, aluminium, sheet, chalk. इन्होंने कहा अलग अलग मटेरियल के कुछ पीसेस को कलेक्ट करो, जैसे पेपर हुआ, कार्डबोर्ड हुआ, वुड हुआ, कॉपर वायर हुआ, एल्युमिनियम शीट हुई, चॉक हुआ. डू एनी दीज अपीयर शाइनी, इनमें से कौन से शाइन कर रहे हैं उनको अलग कीजिए और जो शाइन नहीं करते हैं उनको अलग कीजिए. सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप. ठीक है ना, जो शाइन करते हैं उनको अलग आप करिए सेपरेट, और जो शाइन नहीं करते उनको आप अलग करिए. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस. अब आप देखिए अगर कोई टीचर्स मटेरियल को कट करता है और उसकी जो फ्रेशली कट किया हुआ है उसके सरफेस को आप चेक करिए और आपने क्या नोटिस किया है. डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी. क्या फ्रेशली कट जो मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, उनका जो सरफेस है वो क्या शाइन कर रहा है. इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप्स ऑफ शाइनी मटेरियल. और उसके बाद जो जो शाइन कर रहे हैं उनको आप क्या करोगे, ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, कुछ शाइनी मटेरियल्स में, कुछ नॉट शाइनी में. ठीक है. डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर in the other materials? Cut them any way as you can. Repeat this is in class with repeat this sorry do you notice such a shiny or luster in the other materials? Cut them any way as you can. Repeat this in the class with any as many materials as possible and make a list those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper and see it has luster. आप तो उन्होंने क्या किया है कि आप कई सारी डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट मेटल्स के पीसेस लोगे, डिफरेंट मटेरियल के पीसेस लेके उनको फ्रेशली कट करोगे, फिर आप देखोगे क्या वो शाइन कर रहे हैं, वो लस्टर मीन्स शाइन कर रहे हैं क्या. तो जो पीसेस शाइन करते हैं उनकी एक अलग ग्रुप बनाइए, जो शाइन नहीं करते हैं उनके अलग ग्रुप बनाइए. और आप कट करने की बजाय उनको सैंड पेपर होता है, रेतमाल जिसे हम कहते हैं, उससे रगड़ कर भी देख सकते हो कि कौन से जो मटेरियल्स हैं वो शाइन कर रहे हैं, कौन से मटेरियल हैं जो शाइन नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना. और वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस शाइनी. अगर आप वुड को काटोगे तो क्या शाइन करेगा? नहीं. आप पेपर को कट करोगे तो क्या शाइन करेगा? नहीं. बट समटाइम्स इट हैपन्स कि जो आयरन होता है, आयरन कभी कभी एयर के कांटेक्ट में आकर के आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है. मीन्स आयरन पे ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है और वो आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो आयरन होती है उस पर जंग लग जाती है और वो देखने में गंदा दिखने लगता है. उसके ऊपर जंग की कोट हो जाती है ना, आयरन ऑक्साइड की. पर जब हम उसको फ्रेशली कट करेंगे तो उस प्लेस पर वो एकदम शाइनी, चमकदार दिखाई देता है, लस्टर जिसे हम कहते हैं. तो आप ये भी प्रोसेस करके देख सकते हो कि कई सारे मटेरियल्स आपके पास हैं, हो सकता है ऊपर से आपको नहीं बेहतर दिख रहे हैं, बट व्हेन यू कट दैम, आप उनको कट करोगे, सो फ्रेशली कट एरिया, यू जस्ट चेक द फ्रेशली कट एरिया, is it looks luster or shiny, that you just have to make a group of these all the materials which look shiny after cutting. है ना. कटने के बाद जो शाइनी दिखते हैं आपको उनकी सारी की एक टेबल, एक ग्रुप बनाना है. ओके, इन दिस एक्टिविटी. मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. यस, मैंने आपको बताया जो मटेरियल्स होते हैं जो लस्टर करते हैं वो ज़्यादातर मेटल, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स होते हैं. सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल. यस, कुछ मेटल्स होते हैं कभी कभी अपनी शाइन को खो देते हैं और डल दिखने लगते हैं. मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम. ये एक्शन हो जाता है, रिएक्शन उनका एयर और मॉइस्चर के साथ. सो वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयरफॉर फ्रेशली कट सरफेस. तो उनकी चमक को हम कहाँ देख सकते हैं? हियर आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ द आयरन. जो आयरन का एग्जाम्पल है ना, व्हेन आयरन कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन, सो इट जस्ट कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड. मीन्स उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, तो वो डल दिखने लगता है. पर जब हम इसको कट करेंगे तो उसके सरफेस पे जहाँ पे हमने काटा है, इट्स जस्ट लुक luster. When you visit an iron smith on workshop, look out for freshly cut surface of metal rods
टू सी द इफ़ दे आर हैव लश्यर। वही हम आयरन स्मिथ यानी लोहार की दुकान पे जाएंगे और देखेंगे उसके यहाँ बहुत सा लोहा पड़ा रहता है, बट वो डल हो जाता है, फेडेड हो जाता है। पर व्हेन ही कट द फ्रेशली आयरन, वो ताज़े लोहे को पर जब कट करता है तो उसके सरफेस पे हम उस मेटल्स के लस्टर को, शाइन्स को देख सकते हैं। सो मोस्टली मटेरियल्स आर हैव लस्टर क्वालिटीज़ ऑन देयर अपीयरेंस, यानी दिखने में वो चमकदार होते हैं, कुछ रफ होते हैं, वुड हैं, पेपर हैं, दीज आर नॉट लुकिंग लस्टर, ये शाइनी या लस्टर नहीं होते हैं। बट ऑल द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, दीज ऑल द मेटल्स आर शाइनी और हैविंग लस्टर नेचर, ठीक ना, इनका लस्टर नेचर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हियर, दैट इज हार्डनेस। अब हम हार्डनेस पता करेंगे कि कौन कितना हार्ड और सॉफ्ट होता है। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. जब हम किसी भी मटेरियल्स को अपने हाथ से दबाएंगे तो बहुत सी ईजिली दब जाते हैं, पर बहुत से इतने हार्ड होते हैं कि वो आसानी से आपके हाथ से नहीं दबेंगे। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ द पीस ऑफ वुड। आप एक मेटल की लेकर के आप उससे क्या है, लकड़ी पर की सतह पर, उसके सरफेस पर स्क्रैचेस करोगे। देन एल्युमिनियम एंड द पीस ऑफ स्टोन, उसके बाद एल्युमिनियम पर स्क्रैच करो और एक पत्थर, ए पीस ऑफ स्टोन, उस पर भी करिए। अ नेल, अ कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स, किसी पर भी आप स्क्रैचेस बनाइए। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स, आप कुछ मटेरियल्स को बहुत आसानी से स्क्रैच कर लोगे, वाइल सम मटेरियल्स कैन नॉट बी स्क्रैच ईजिली। यस, अगर हम चौक पे अपनी की लेंगे, एक मेटल की और स्क्रैच करेंगे तो ईजिली स्क्रैच हो जाएगा। वुड पर भी बहुत लेवल तक स्क्रैच हो जाएगा, पर एल्युमिनियम के पीस पर क्या ईजिली होगा? चौक पर, कैंडल पर, इन पर बहुत ईजिली हम स्क्रैच कर सकते हैं। पर हमारे नेल्स होते हैं, एल्युमिनियम होगा, वुड होगा, दे विल टेक लिटिल बिट टाइम। तो कुछ मटेरियल तो हमारे जो होंगे वो ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं, पर कुछ मटेरियल्स पे हम ईजिली स्क्रैच नहीं कर सकते। सो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो ऐसे मटेरियल जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, उनको तो हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। बट कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनको स्क्रैच करना, जिनको कंप्रेस करना बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज सॉफ्ट, वाइल आयरन इज़ हार्ड। अगर हम बात करें कॉटन की, स्पॉन्ज की, कैंडल की भी बात करें तो दीज आर द सॉफ्ट मटेरियल्स, ठीक है। जबकि आयरन इज़ अ हार्ड, आयरन हमारा क्या होगा? हार्ड मटेरियल, इट्स अ हार्ड मटेरियल। ओके, इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। यस, दिखने में मटेरियल जो होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, लाइक लस्टर होते हैं, चमक होते हैं, हार्डनेस होती है, कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं। कैन यू थिंक ऑन द अदर प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल? पर आपने कभी सोचा है कि और कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल्स की जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद इन आवर एक्टिविटी नंबर 4 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द अनदर प्रॉपर्टी एंड दैट इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। मीन्स कौन से घुलनशील होते हैं, सॉल्यूबल मीन्स खुल जाए और इनसॉल्यूबल मीन्स जो घुलते नहीं हैं। तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू इन अवर एक्टिविटी नंबर 4 द अनदर प्रॉपर्टी एंड दैट इज सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। कलेक्ट सैम्पल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर। हम कुछ सैम्पल कलेक्ट करते हैं कुछ सॉलिड सब्सटेंस के, लाइक शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड डस्ट, ठीक है ना। शुगर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, चॉक पाउडर लेते हैं, सैंड लेते हैं, सैंड डस्ट लेते हैं, ठीक है ना। टेक 5 ग्लासेस। अब हम 5 ग्लासेस लेते हैं। टेक 5 ग्लासेस। बीकर हम जिन्हें कहते हैं, यहाँ पर पिक्चर शो नहीं हो रही है, इट्स पर ऐसे बीकर ऐसे होते हैं, ठीक है ना। इस पे मान लो वाटर है, सम सॉल्युबल, ठीक है ना। फिल ईच ऑफ दैम अबाउट 2/3 ऑफ वाटर। 2/3 कम से कम उसमें पानी भर लेते हैं। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। पहली ग्लास में हमने अगर शुगर का स्मॉल शुगर डाल दी, ठीक है ना। एंड द सेकेंड एंड सॉल्ट टू द सेकेंड, और दूसरे में हमने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इनटू अदर ग्लासेस। अब हमने एक में चॉक डस्ट डाल दी, एक में हमने सैंड डाल दिया, ठीक है ना। एंड स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच दैम विद स्पून, और सबको हम हिलाएंगे। यू जस्ट हैव टू डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। आपको घर में एक्टिविटी करना है, ये है ना। क्या करना है? 5 बीकर्स लेने हैं, एक में सॉल्ट डाल दिया, एक में शुगर डाल दी, एक में आपने सैंड डाल दी, एक में चॉक डाल दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ तक कि इसमें वाटर फिल है,
ओके। और इसमें आपने एक में शुगर डाल दिया, ठीक है, ये शुगर डाल दी मान के चलो, ये आपने सॉल्ट डाल दिया इसमें, ठीक है, इसमें आपने सैंड डाल दी और इसमें मान के चलो आपने चॉक डाल दिया, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंस added to water. Note your observation as shown in table 4.3. आपको 4.3 टेबल में नोट करना है कि what happens. तो we all know शुगर क्या करेगी, डिसॉल्व हो जाएगी, है ना, मीन्स सॉल्युबल है। सॉल्ट क्या करेगा, इट इज़ ऑल्सो सॉल्युबल। सैंड सॉल्युबल नहीं, जो हमारी बालू है वो कभी भी पानी में मिक्स नहीं होगी। चॉक डस्ट की बात करें तो सम पार्ट्स ऑफ चॉक डस्ट विल सॉल्युबल, थोड़े से तो सॉल्युबल हो जाएंगे, बट सम पार्ट्स मीन्स इट इज़ सेमी सॉल्युबल, ये सेमी सॉल्युबल पार्ट में रहेगा ना, तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व होगा और कम्प्लीटली insoluble रहेगा, ठीक है ना। so these all the observation you just have to write on your table 4.3 that what is happening when you are doing this activity at your home. You will notice that some substance have completely disappeared, yes, जो कि sugar होगा, salt होगा, है ना। We say that these substances are soluble, जो घुल जाएंगे पूरी तरीके से, that is soluble. Other substance do not mix with water and do not disappear. कुछ substance sand हैं या chalk हैं वो disappear नहीं होंगे, it means these are insoluble. वो क्या होंगे, हमारे insoluble होंगे in water. Clear? These substances are insoluble in water, ठीक है। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? Yes, water का हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने में वाटर इज़ वेरी हेल्पफुल। नाउ इन योर अदर एक्टिविटी एंड दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 5. अब एक्टिविटी नंबर 5 में व्हाट इज़ हैपनिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. कलेक्ट सम सैम्पल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल. आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप कुछ सैम्पल लीजिए विनेगर के सैम्पल, लेमन जूस लीजिए, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल. क्या क्या लेना है, हमें विनेगर लेना है, लेमन जूस लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है और कोकोनट ऑयल लेना है, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड और कोई भी लिक्विड. टेक अ ग्लास टम्बलर, ग्लास लेते हैं हम, फिल अप हाफ वाटर, उसमें आधा पानी भरते हैं, एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल. अब उसमें हम एक एक लिक्विड को मिलाते हैं और देखते हैं क्या होता है. लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट की लग दिया. ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड्स मिक्स विद वाटर, जो लिक्विड पानी के साथ घुल जाते हैं. रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू. राइट योर ऑब्जर्वेशन. इन सारे लिक्विड्स को पानी में 1 बाय 1 आपको डिसॉल्व करना है. देन यू हैव टू ऑब्जर्व. तो हम देखेंगे विनेगर क्या करेगा, पानी के साथ बिल्कुल घुल जाएगा, लेमन जूस घुल जाएगा, बट मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल है, इट विल नॉट डिसॉल्व, ये हल्का होता है पानी से और पानी के ऊपर तैरेगा. कोकोनट ऑयल ये भी डिसॉल्व नहीं होगा, है ना. सो दीज ऑल द ऑब्जर्वेशन यू जस्ट हैव टू डू, एक्चुअली दीज ऑल द एक्टिविटीज़ यू जस्ट हैव टू डू एट योर होम एंड देन यू हैव टू राइट योर ऑब्जर्वेशन ऑन द टेबल नंबर 4.4 सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर. ये आपको करने हैं और देखना है कि व्हाट हैपेंड व्हेन यू डू दिस ऑल द एक्सपेरिमेंट एट योर होम. आपको अपने घर में देखना है कि आपने जब ये सारे एक्सपेरिमेंट किए तो एक्चुअली व्हाट हैपन, हुआ क्या, ठीक है ना. We notice that some liquids get completely mixed. हाँ, सारे जो कुछ लिक्विड होंगे वो तो completely mix हो जाएंगे with water. Some other do not mix with water from a separate layer aside from, और कुछ मिक्स नहीं होंगे और अपनी एक सेपरेट लेयर बना देते हैं वाटर के साथ. सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सम आर नॉट. इसी तरह से अगर हम गैस की बात करते हैं तो कुछ गैसेस होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं पर कुछ नहीं होती. वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैसेज डिसॉल्व. वैसे जनरली अगर बात करें तो पानी में ऑलरेडी कुछ गैसेज मिक्स रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है डिसॉल्व इन वाटर and it is very important for the survival of the animals and plants that live in water. जो कि पानी में रहने वाले जानवरों की जीवन के लिए, उनकी सर्वाइव के लिए बहुत आवश्यक होती है. तो कुछ गैसेस होती हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होती हैं और कुछ गैसेस होती हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है ना. सो हियर I have discussed with you about what today I am going to discuss with you the properties, है ना. So appearance I have explained you here about the
appearance of the appearance property of the materials, they have different look, and some have luster means shiny properties, and some have हार्डनेस है ना, कुछ में हार्डनेस होती है, सम आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सम आर इनसॉल्युबल वाटर इन वाटर मटेरियल्स की दीज आर ऑल डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स है ना, सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, अपीयरेंस एंड लस्टर क्वालिटीज एंड डलनेस, दीज ऑल आर द क्वालिटीज or the properties of the materials. So please read this chapter carefully, and rest of the things I will discuss with you in our next video. So please like the video, subscribe the channel, and for the today kids, thank you and have a nice day.